जितेंद्र जी, आपको क्राइम फ्री भारत मिशन को समझने का मौका मिला क्या? हाँ, मैं अभी बीच बीच में थोड़ा सा क्लिप चेक कर रहा हूँ। ओके। उसका कारण ये है क्योंकि मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और के साथ में इन्वॉल्व काम कर रहा हूँ। ओके। तो इंटरनेशनली और नेशनली अभी जो खास करके महामारी का जो केस चल रहा हम्म। है, इसके पीछे एक बड़ा फ्रॉड गेम चल रहा है और उस Oh, फ्रॉड गेम को I am in 200% agreement. I don't know whether you are aware of it or not. In हम्म, 2020, when this Corona affair came, हम्म, so I wrote almost 5 letters to Prime Minister, yes, and it was in different tone and tenor. And finally, I conducted research myself, and हम्म, to your surprise, we could हम्म, prove that coronavirus is being its outer membrane is being destroyed by lemon juice, and it is yes, being killed, right? yes, Then I have written again letter to Honorable Prime Minister how within 4 to 6 days हम्म, Corona can be off the India, and you did not need not to go for the lockup or any kind of thing. So हम्म, locking up is not a good thing, and people are suffering a lot. And हम्म, when nothing happened, then I spoke to Dr. Pandya. okay, Dr. Pandya is a nodal officer, I mean, chief of Corona affairs, right? हम्म, So I said I discussed about the letter which I had written to Honorable Prime Minister, and I made a very simple request that since you have already connected all RT-PCR labs through the software, so I हम्म, requested him that at that moment of the time, I remember there were almost 4 lakhs positive cases per day, the new cases. हम्म, हम्म, So I said, this is a very simple thing. You हम्म, just request or instruct your laboratories that they just put one drop of the lemon juice in the positive samples, and you हम्म, resubject the test, and you will find that solution is vitiated because corona is killed, right? And हम्म, this uh, can be done in a day because you are having enough samples across the country, and that is almost 4 lakh samples. okay. So instead of saying yes, he will do or not do, he came out with a very original thing, and he said, "Sir, do you know that हम्म, health is a state subject?" हम्म, When he said health is a state subject, मेरा एकदम भेजा खराब हो गया, right? हम्म, I हम्म, said, डॉक्टर पांडे, आपको लज्जा बिल्कुल नहीं आती है क्या? यदि हम्म, ये हेल्थ सब्जेक्ट है तो किस अथॉरिटी से आप हर दिन नए नए प्रोटोकॉल जारी कर रहे हो जो फतवा जैसे हैं? और बिल्कुल। किसी भी राज्य सरकार और एसीएस हेल्थ की औकात नहीं है कि आपके इन फतवों के अगेंस्ट कुछ भी कर दें, वो औकात एक नहीं सिंपल है। स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते। हाँ। हाँ, मतलब वही मैंने कहा कि इतनी औकात नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि जो है स्मॉल थिंग्स, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू एग्री विथ मी, आई एम सेइंग you confirm I am giving you a very simple solution which can be done in a day, and next day you हम्म, can publish a global paper, and India will become hero, and whole world will come out of this crisis. हम्म, uh, as you know, there were that big conspiracy in which Dr. Pandya is also a helpless creature. yes. In that case, let me just give you a glimpse Huh. because everything that is undergoing under the name of coronavirus Mhm. or the COVID-19, Mhm. it is clear that throughout the world, Mhm. international organizations and human rights organizations or doctors, nurses, they have all cleared up the things that the coronavirus, the virus itself has not been isolated ever till Uh-huh. date from Mhm. any of the person or laboratory or organization, even Mhm. CDC. Mhm. And it was totally a program But of no, gain of functioning. but they are saying that they have isolated and they are doing this and that, and that's how they are identifying ki this is of the different
distortion. I don't know what is they are classifying these coronas. So what is the basis of classification? No, that's what I'm telling you, that Mm-hmm. since international organizations are openly speaking up, the Mm-hmm. laboratories are openly speaking up, the human rights organizations are literally coming up with the things. Mm-hmm. And it has been proved even that this virus has not been isolated. So when it is not isolated, then how they came to know that it is migrating or it is converting from man to man or human to human, right? Mm-hmm. Moreover, the things is that the same thing that has been already on the platform Mm-hmm. with many of the other organizations and throughout the world, Mm-hmm. that this coronavirus, which is not a pandemic, it's a pandemic, because Mm-hmm. all the scientists and whatever they have been bringing out Pandemic the means it things. has been planned and it has been forced on the globe. You mean to say that Yeah, pandemic means that only? yes, Okay, right. yes, that's what Okay. I'm saying. That gain of functioning means Dr. Fauci I really liked your and this word Dr. pandemic. Yeah. Yeah, Daszak and all that, the persons, they were involved in the one kind of gain of functioning. So Mm-hmm. gain of functioning means the US was funding and other countries were funding into this. Then China's laboratory was used, and it has been a bio weapon war like situation. The VP, this CDC of India, the Mm-hmm. chief defense officer, right? He was killed. He was murdered actually. He was Mm-hmm. not just an accident. It was not an accident only. It was, Mm-hmm. it was just a blunder murder, right? Mm-hmm. Mm-hmm. And in that sense, I have given two letters from my side also to Government of India. Mm-hmm. One for the children vaccination, because when Sanjay Rai said that the vaccination is not required for children because children are already healthy. Mm-hmm. And in that case, the chief secretary is Mm-hmm. transferring my letter from time to time to the secretary health, but he is Mm-hmm. not replying me. Right? Mm-hmm. Mm-hmm. I told them that the things which are there throughout the international media and all these things, UN is a private organization. So UN being a private organization of the countries, Mm-hmm. the country has signed something with that. Mm-hmm. Right? In 2015, there were number of countries who signed a treaty of New World Order. Mm-hmm. So in that sense, if I talk about the New World Order is a private agenda. It's not a government agenda, I read right? about it. So I'm not very sure that to what extent it is real to close to the reality, but uh, I feel there's some element of truth in that. the, the only thing which I want to tell you, Mm-hmm. New World Order is an agenda which was prepared by a number of countries in 2015. It Mm-hmm. was signed under UN organization, right? And then they tried to find out some clue on some cause where they can force the world to go into the New World Order. And they were looking forward to And plan something like this. actually, let me know from you. Somewhere I was reading that the vaccine it was patented long before. That's what I'm telling you, that RT-PCR test kit, which they spread throughout the world through the World Bank, that Mm-hmm. was spread by 2017. So when That 2017, you talk about, really to some extent verify that or endorse or substantiate your claim that it is a pandemic. that's what I'm saying. No, because Mm-hmm. only thing is that Mm-hmm. आप सीधा सा एक चीज आप लगाइए, अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा बात करूंगा, हाँ हाँ 2017 के अंदर आपका सारा टेस्ट किट पूरा वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बैंक के थ्रू पास किया गया. एक बीमारी जो महामारी है, डॉक्टर फाउची कहते हैं कि 19 में ट्रम्प का लास्ट जब चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि एक पैंडेमिक आने वाला है और ट्रम्प के लास्ट एंड में, यानी उसके रूलिंग लास्ट में ये आएगा. तो जब आएगा तो आप मुझे बताइए, डॉक्टर फाउची कौन से प्रॉफिट है जो उसको मालूम पता चल गया कि भाई इतना बड़ा महामारी आने वाला है. 2017 में आप टेस्ट किट पूरी दुनिया को बांट रहे हो, किस आधार पे बांट रहे हो? आपको क्या पता था कि इस तरह का वायरस आएगा और इसके लिए आपको ये टेस्ट किट चाहिए?
ठीक है। डॉक्टर जो एक्चुअली इसका इन्वेंटर है आरटीपीसीआर का, वो खुद बोलता है कि ये एक नॉर्मल टेस्ट किट है, इसमें आप जितने पॉजिटिव चाहना चाहते हो वो उतना पॉजिटिव आपको मिल जाएंगे, जितना नेगेटिव चाहते हो उतने नेगेटिव मिल जाएंगे। मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट किट को you have to feed it in advance, something like that, and हाँ, वो एडवांस में उसको फीड करो या उसकी स्पीडिंग कुछ ऐसा है। हाँ, ठीक है, सीडीसी उसको कैंसिल कर चुका है। दूसरा, सीडीसी खुद मान चुका है कि ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा टाइप का है। तो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है जो कि नॉर्मली हमारे सर्दी के मौसम में इंडिया में खास करके या सर्दी के कंट्री में जहाँ भी होता है वो डेली आता ही आता है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से पूरा पैंडेमिक है, और इसमें एक्चुअली जो इंजेक्शन जो आपको वैक्सीन बोल रहे हैं ये एक्चुअली वैक्सीन नहीं है। ठीक है, अभी जॉनस कैनेडी का जो जूनियर है, what exactly it is in your views? It is some kind of the nanomaterial which is intended to modify your genes. That's what I'm telling you कि ये एक्चुअली रॉबर्ट मेलोन को आप पढ़िए। रॉबर्ट मेलोन एक्चुअली mRNA वैक्सीन का इन्वेंटर है। ओके। वो खुद बोल चुका है कि एक्चुअली ये एक जीन थेरेपी है, और जीन थेरेपी में ये आपके डीएनए को मॉडिफाई करेगा, डिकोडिंग करेगा और मॉडिफाई करेगा, डिकोडिंग भी करेगा और मॉडिफाई भी करेगा और म्यूटेशन भी करेगा। ठीक है, और म्यूटेशन भी कर सकता है। अब उसमें क्या रिजल्ट है, क्योंकि उसका जो कहना है कि बच्चों में तो ये बिल्कुल दिया नहीं जाना चाहिए, ये ट्रिगर ऑन होने के बाद ऑफ नहीं होगा। अब हमने इस चीज नहीं, लेकिन ये बताइए ना, आपने दुनिया को फोर्स कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद जो वो कहा, और आई फाउंड दैट कि लेमन इज वर्किंग, एंड जिनको भी हमने लेमन थेरेपी दी है उस पूरी चीज को डॉक्यूमेंटेशन किया गया, and that documentation has also had been shared. So I am of the firm view that it can be easily handled with the lemon, few 2 drops of the lemon in both nostril. Then why vaccination? Number one. Number two, it is costing 1,200 rupees per vaccine, and if you multiply it by 137, it makes it a 17 lakh crore. And if you need 2 vaccine at least with the booster dose, so it means it is 34 lakh crore rupees. And your income tax base is only 10 lakh crore at the moment. So you need 4 years of the income tax just for the vaccination. Number one. Number two, why when some people are opposing that they will not undergo the vaccination, then why it is imposed differently. Say you cannot go in market, you cannot go in a super bazaar, you cannot enter into the train, you cannot enter into aeroplane without having the vaccination. Though I myself had to undergo the vaccination because I had to visit my daughter, so I will be requiring that entry to the airport, and that will not be possible without vaccination. देखिए, मैं अब आपको जो बता रहा हूँ वो ये चीज को टोटली मिला के कि पहली बात, मैं अगर स्टार्टिंग से इसको थोड़ा सा बता दूं कि जब गेन ऑफ फंक्शनिंग कर रहे हैं तो गेन ऑफ फंक्शनिंग का मतलब होता है कि आप एक बायो वेपन तैयार कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, और ये वेपन हैजार्डस वायरस को आप जब मॉडिफाई करते हैं तो हैजार्डस बना रहे हो जो ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक है। अब इस मामले में आपकी जो गेन ऑफ फंक्शनिंग चली थी, जिसमें ट्रम्प ने बोल भी दिया था कि चाइना से वायरस आया है, इस तरह का चाइना वायरस है जो भी है, तो इसमें एक जो इन्वेस्टिगेशन होना था इंटरनेशनली वो कहाँ गया, इंडिया में कहाँ गया या बाकी कंट्री में कहाँ गया। दूसरी चीज ये है कि जब आपको मालूम था कि इस तरह की हरकत होने वाली है या इस तरह की चीजें आने वाली हैं, तो इग्नोर गवर्नमेंट अगर कहती है कि हमें मालूम नहीं है, मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। कारण क्या है, 2015 के अंदर जो एग्रीमेंट यूएन के अंदर साइन हुआ है उसमें तो इंडिया भी साइन किया हुआ है ना, और डब्ल्यूएचओ की सारी बॉडीज में इंडिया का मेंबर बैठे हुए हैं। तो आपके जो मेंबर बैठे हुए हैं, आपकी हर इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही जा रही है, सब कुछ आपको मालूम है। तो आपने अपनी कंट्री को अफ्रीकन कंट्री में जितेंद्र, एक थोड़ा सा आपको हल्का सा जो है डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हुए, आई वुड लाइक टू नो योर रिएक्शन। मेरी एक फीलिंग है कि भारत के जितने भी विद्वान, साइंटिस्ट और जो पर्सन दो हु रियली मैटर्स, they are on the radar of international forces, especially commercial organizations, right? And they are invited on various seminars, training courses, and
made very comfortable. They are kept in 5-star and 7-star hotels, given beautiful gifts also, and it is a very planned exercise. अभी Under that, देखिए दोलान में just a minute, just a minute. I want your views on this hypothesis. I am not very sure whether I am right or not. Uh, Hypothesis is this, that then they will made you to write some article based on whatever they have already planned and documented, and made a impressive documentary, and will sincerely make you believe that whatever is being pumped or whatever is being pushed, that is a very genuine scientific facts, right? And after making you believe, then they will make you write a few articles, and that will be published through that international conspiracy in the best journals of the world, right? And then deliberately they will give you some awards, something like Magsaysay award kind of thing, and then you are made a celebrity. And there's a very definite purpose to make you celebrity, so that making use of you as an agent without even you realizing that you are being used as an agent, that whole thing will be pushed or imposed on the country. And when I really think of it, I feel कि क्या हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, क्या वो भी इसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए क्या? क्योंकि जो देखिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इफेक्ट टुडे है, वो उस दिन भी होगा जिस दिन उन्होंने उसको पुश किया है। और उन्हें देखिए ये भी मैं मालूम था कि इंडिया का जो है ना पूरा वो बायो और एग्रीकल्चर और उसके ऊपर है, तो उन्होंने उसको जो है ना करके हमारे पूरे फैट फूड चेन को जो है ना पॉइजनस कर दिया है। आज जहां कहीं पे भी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, वहां पर कैंसर ट्रेन चल रही है। और हम एज ए इंडियन, कई बार मुझे लगता है कि हमारा डीएनए इतना खराब क्यों हो गया है? जहां दान करना, लोगों की सेवा करना हमारी सोच और संस्कृति का हिस्सा है, वहां पे हम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हैं कि 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर दूध मार्केट में बेचा जा रहा है। 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया जैसे हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है। और मेरा सोचना ये भी है कि यदि हम जिस तरीके की केमिकल बॉम्बार्डिंग करके अपने सेल के प्रति अत्याचार कर रहे हैं, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली फील कैंसर इज नथिंग, इट इज ए प्रोटेस्ट ऑफ योर बॉडी सेल अगेंस्ट द एट्रोसिटी विच बीइंग committed by us on our body cells. Do you agree with this hypothesis? देखिए मैं आपको एक टोटल बता रहा हूँ। Mm-hmm. इनका एक डार्पा करके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रोग्राम है। ओके। और डार्पा में ये लोग काफी टाइम से अमेरिकन एजेंसीज जो सीआईए वगैरह है, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपना मेडिकल रिसर्च करती रहती हैं। ओके। या उसमें जो निकल के आया है, अभी आपको आपने देखा होगा मौसम के दौरान केमिट्रेल ये आकाश में डालते हैं, जिससे ये कहीं भी अपना एक जो है बारिश बना सकते हैं, कहीं भी ये केमिकल डाल सकते हैं, ये किसी तरह का भी बाढ़ ला सकते हैं, किसी तरह का भूकंप ला सकते हैं। तो ये सारा ये साइंटिफिकली इन्होंने अपना मैनेज कर लिया है उस चीज को। ओके। तो बेसिकली ये जियो इंजीनियरिंग के थ्रू जो काम करना चाह रहे हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं, इनको खुद नहीं लगता है कि दे आर themselves are the human being, and when they will not be discriminated, they themselves and their kith and kin will also be suffering. तो उन्हें क्या ह्यूमन रेस से घृणा है क्या? Why they are doing this? देखिए उनका अभी जो मानना है, आप वर्ल्ड बैंक इसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का जो चीफ है, उसका जो एडवाइजर है मिस्टर हरारी, तो इजरायली एक प्रकार से हिस्टोरियन है, और वो काफी कुछ बोल रहा है अभी। तो वो ट्रांस ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है। ट्रांस ह्यूमनिज्म का मतलब सीधा सीधा है कि ह्यूमन बीइंग को एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट थिंग से जोड़ दिया जाए। अब ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट में आप 5G टावर को आप देख लीजिए। 5G टावर में जो एक्चुअली इम्पैक्ट हैं, वो सेम इम्पैक्ट हैं जो कोविड के हैं, और कोविड के जो इम्पैक्ट हैं वो सेम इम्पैक्ट हैं जो ग्राफीन ऑक्साइड के हैं।
यानी ग्राफीन ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड बना के, नैनो पार्टिकल्स बना के उसको एक प्रकार से इंजेक्शंस के अंदर यूज किया गया है। स्पार्क जो ये एक प्रकार से जो केमिकल है, अब इस केमिकल को जब यूज किया गया है तो ये केमिकल अब इंटरनली लोगों को क्या कर रहा है, क्लोटिंग दे रहा है। और क्लोटिंग दे रहा है तो उसमें जो क्लोटिंग है वो नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग से डिफरेंट क्लोटिंग आ रही है। अब उस पैमाने पे जो जब कोरोना आ रहा था तो कोरोना के टाइम पे जो बाकी लोग मर रहे थे उनको इन्होंने सबको कोरोना की डेथ में दिखाया। अब जब लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बच्चे अटैक से मर रहे हैं या बाकी चीजों में जब आ रहे हैं, नॉर्मली चलता फिरता एक आदमी मर जा रहा है अटैक से, तो उस कंडीशन में सरकार बिल्कुल जवाबदारी पे नहीं बैठी हुई। ठीक है, अगर इनको कोरोना के प्रति इतनी वफादारी थी तो अब जो लोग मर रहे हैं उनकी जवाबदारी किसके पास है? एडवर्स इवेंट रिपोर्ट करके एक भरा जाता है जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है। अगर उसमें एडवर्स इवेंट रिपोर्ट आ रही है तो उस रिपोर्ट पे इंडिया कहाँ फाइल कर रहा है, या उसका डाटा कहाँ कंपाइल किया जा रहा है, या किसके द्वारा कंपाइल किया जा रहा है? दूसरी चीज निम्बर कोड आता है। निम्बर कोड में अगर हम देखें हेल्थ जो हमारा ह्यूमन राइट्स का आता है 2005 का, उसमें बायो एथिक्स का ही रूल है ह्यूमन राइट्स का कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी आदमी को, और उसको फ्री विल दिया गया है, उसको फ्री विल कंसेंट लेना होता है। तो कंसेंट में जब आप उसको सारी चीजें बताएंगे कि भाई इसमें ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। दूसरा, कंसेंट के अंदर अगर बंदा आगे जाना चाहेगा एक्सपेरिमेंट में तो जाएगा, अगर नहीं जाना चाहेगा तो वो बीच में ड्रॉ कर सकता है। तो निम्बर कोड का पूरी तरीके से वायलेशन किया गया है, क्योंकि ये कहते हैं कंसेंट लिया। अब कंसेंट के लिए मुझे एक बात बताइए, 18 साल के बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको एक 18 होना, उसका मेजर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने वैक्सीनेशन के दौरान एक फंडा दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए आपका कंसेंट रिटर्न में जरूरी नहीं है। आप फोन पे भी अगर फॉर्म भर दिए या फॉर्म पे भी आपने इंक्वायरी कर लिया या आप वहाँ चले गए तो इन्होंने ये आपका कंसेंट मान लिया। ठीक है, नहीं, इसमें कंसेंट कॉन्सेंट कहाँ है? वो तो उल्टा ही है। दे आर इन्फोर्सिंग के आपके जो है ना वैक्सीनेशन नहीं लिया तो हम यहाँ नहीं घुसने देंगे, वहाँ नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। वही बता तो इट इज कॉन्सेंट, तो जो कॉन्सेंट के तो एकदम डायगोनली अपोजिट हो रहा है ना। दे आर फोर्सिंग यू। कॉन्सेंट के अगेंस्ट, आई मीन यू आर बीइंग फोर्स्ड। फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेंट पार्ट ऑफ इट। यही चीज आप समझिए ना, इंडिया में इन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ नहीं ट्रेवल करने देंगे या यहाँ नहीं जाने देंगे या ये नहीं करने देंगे या वो नहीं करने देंगे, या आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आरटीआई में सेंट्रल गवर्नमेंट जब एफिडेविट तक बॉम्बे हाई कोर्ट में दे रहा है और उसमें कह रहा है कि हमने तो वॉलंटरी किया हुआ, मैंडेटरी नहीं किया हुआ। अब वॉलंटरी, लेकिन यदि वॉलंटरी है तो आप कैसे इन्फोर्स कर सकते हो कि बिना वैक्सीनेशन के आप जो है ना बिग बाजार में नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, आप एयरपोर्ट में नहीं घुस सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो बंदे बैठे हैं ये इसको फोर्स कैसे कर रहे हैं? कैसे? अगर स्टेट का मैटर है हेल्थ तो सेंटर क्यों गाइडलाइन दे रहा है? अब इसको जितेंद्र थोड़ा सा इस बात को अभी बीच में थोड़ा सा ड्रॉप करते हुए मैं आपको एकदम दूसरी डायमेंशन में ले जाना चाहूंगा। और वो डायमेंशन ये है कि देखो, it is a political conspiracy in which the politicians are participating, and through politicians, just a minute, अब ये पॉलिटिशियन ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर ट्रीटिंग इट एज ए टूल टू स्टे इन पावर। तो हमारा रिस्पॉन्स ये नहीं होना चाहिए कि हम इन दुष्टों को डिथ्रोन कर देंगे, इन सभी लोगों को हम हरा देंगे। ये यदि हम स्ट्रेटेजी करेंगे तो जो आप और हम कह रहे हैं उससे उसका फायदा तो हम पब्लिक को दे भी पाएंगे, और हम उससे अलावा 21 और फायदे दे सकते हैं। 21 मोर, आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन थ्रू द 21 ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन। क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि इस देश के साथ तो शुरू से ही पॉलिटिकल दुष्टता की गई है। आप ये बताइए, यदि आप गुलाम हैं और आपको गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए जो फॉरेन पावर है उसने जो नियम कानून बनाए हैं वो गुलामों को कुंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए जाते हैं, और उनकी सेवा या विकास के लिए बनाए जाते हैं? देखिए अभी जो हालात है नहीं, अभी मैं अब आपको दूसरे डायमेंशन में ले जा रहे हैं। अभी उस डायमेंशन का जवाब चाहिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए वो भारतीय गुलामों के विकास के लिए बनाए या उन्हें
कुंठित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें जो है शोषित करने के लिए और देश की संपत्ति को लूटने के लिए बनाएंगे। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू माई क्वेश्चन? आपका क्या जवाब है उसके बारे में? नहीं देखो, उसमें मैं जहाँ तक बात करूंगा तो मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि यदि आप जो है ब्रिटिशर होते तो आप नियम कानून जो बनाते वो जिनके ऊपर आप शासन कर रहे हैं उनको शासित करने के लिए बनाते, अपने फायदे को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाते, उस देश को लूट के उसकी संपत्ति को ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाते, या उस देश की सेवा के लिए बनाते, उस देश के विकास के लिए बनाते? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि वो सभी जो है आपके शोषण के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपके साथ दुष्टता करने के लिए बनाए गए। तो जब आप स्वतंत्र होंगे तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द न्यू पॉलिटिकल बॉसेस? कि वो सब नियम कानून को मॉडिफाई करें एंड चेंज देम, मेक देम रियली बेनिफिशियल टू द पब्लिक एट लार्ज। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो सिस्टम उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक और प्रशासनिक और जुडिशियल सिस्टम बनाया था, वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सबसे कम खर्च करके हम गुलामों पे कैसे शासन करें उसके लिए बनाया था। और उसका लिटमस टेस्ट ये था कि आपके फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें वही सिस्टम बड़ी आसानी से फांसी के फंदे पे चढ़ा देता था। हमने वही व्यवस्था बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले अपने देशवासियों पे थोप के देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं की है क्या? देखिए, इसमें सीधा सा एक ही क्वेश्चन आता है कि भारत आजाद नहीं, हुआ। आप इसका थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए। वो फिर अपन भारत आजाद हुआ कि नहीं हुआ उसको थोड़ी देर से बात कर लेंगे। ये दो जगह बहुत जवाब है, क्योंकि उससे जो है ना इट विल फ्रेम द रेफरेंस ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट ज्वाइन टुगेदर। यदि हम कोरोना और छोटी मोटी की बातें करेंगे तो ये कोई किसी दूसरे हथियार को निकाल लेंगे, क्योंकि द ऑल जो है ना नेगेटिव फोर्सेस दे आर कंस्पायरिंग टुगेदर और उनके अपने लाभ पूरे हो रहे हैं। एक अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें जीतना भी नहीं चाहिए था, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए था। सो तो नहीं, अभी इसमें एक सिंपल सी चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा या कहना चाहूंगा इसमें, भारत के लोकतंत्र की जहां तक बात है, तो लोकतंत्र तो अभी अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू में, हम जिनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बोलते हैं, जिनको हम सिलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, वो सिलेक्टिंग किस बेस पे हो रही है? वो मनी और पावर बेस पे ही हो रही है। हाँ, उसका डेमोक्रेटिकली कहीं भी कोई भी भारत का नागरिक जो वोट दे रहा है, आप इसमें अगर थोड़ा सा ईवीएम की तरफ जाएंगे तो ईवीएम के अंदर जो एक गेम खेला जा रहा है, इसमें भी बहुत तगड़ा होच है कि ईवीएम को लेके ये बराबर अपना इस्तेमाल कर रहे हैं कि ईवीएम को हटा दीजिए। देखिए, देश में दो तरह के इलेक्शन अभी भी हैं। पब्लिक से जो कॉमन इलेक्शन है वो ईवीएम पे है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हमारा अभी भी बैलेट पेपर से है। तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है नंबर 1, और उसमें इलेक्शन है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दो तरह की धाराएं आप क्यों चलाते हैं? एक ही तरह की धारा चलाओ ना, फिर आप चलानी है तो। दूसरी चीज क्या है कि जो भारत का अभी इलेक्शन की बात कह रहे हैं हम, इलेक्शन में हमारे जो लोग हैं जिनको हम भारतवासी बोलते हैं, तो मैं कहूँगा अभी सबसे बड़ी तो हमारे ऊपर सिस्टम में, हमारा जो सिस्टम में आईएएस आईपीएस बैठते हैं या जो पीपल बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं पता है? इनको सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ पता है। आप तो डिपार्टमेंट में रहे हैं। अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा या लोगों से भी इस तरह की बातें हम करते हैं कई बार कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं उनको जानकारी है, आम पब्लिक को जानकारी नहीं है। तो ये लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, इनको सिस्टम चलाने के लिए बिठाया जाता है। तो सिस्टम चलाने के लिए जब ये बैठते हैं तो ये क्यों नहीं इनको रेटेलिएट करते, इन पॉलिटिकल लीडर्स को रेटेलिएट? मैं आपका जवाब, क्योंकि ये पॉलिटिकल, एक मिनट, मैं आपको इस बात का जवाब, उनको एज ए सर्वेंट एक मिनट, मैं जो है आपकी बात का बड़ा डिटेल में जवाब दूंगा, लेकिन
इसके पहले मैं एक आध क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या देश के संविधान ने देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है कि वो जो है संविधान में कोई आर्टिकल बाय नोटिफिकेशन डाल दे? ऐसा किसी अधिकार से आप परिचित हैं क्या? संविधान ने दिया होगा, क्योंकि आप तो इतनी सारी पीएचडी किए हुए हैं। नहीं नहीं, उसमें देखिए राष्ट्रपति के पास अधिकार की जहाँ तक बात है, जो भी कानून संसद और लोकसभा के अंदर जब पास होता है, लोकसभा और नहीं नहीं, राज्यसभा के अंदर मैंने में। बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन किया। क्या कोई आर्टिकल कोई देश का प्रेसिडेंट, मतलब भारत देश हाँ का प्रेसिडेंट, हाँ। बाय नोटिफिकेशन संविधान में पैदा कर सकता है क्या? नहीं, मेरे नॉलेज में तो अभी तक है नहीं। नहीं कर सकता है। तो लेकिन बाय आर्टिकल पावर ऑफ 35, मैं। आर्टिकल हाँ 35A कैसे पैदा कर दिया गया? और हाँ आप जिन ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो हाँ। ब्यूरोक्रेसी ने ना पब्लिक को बताया ना जुडिशरी ने बताया। देखिए, 2014 में एक पीआईएल भी सुप्रीम हम्म, कोर्ट में लगाई गई थी 2014 में, और हम्म, उसका मजनून केवल इतना ही था कि आर्टिकल 35A संविधान के बिना संशोधन के, आर्टिकल 365 की जो कोडल फॉर्मेलिटी है संविधान संशोधन की, उसका बिना पालन किए संविधान को संशोधित कर दिया गया है बाय इंजर्टिंग आर्टिकल। तो ये आर्टिकल 35A असंवैधानिक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दूध पीते बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि जो कोई जो है ना संविधान में एक आर्टिकल घुस रहा है बिना पार्लियामेंट जाए, तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? नंबर सही वन। बात है। नंबर टू, इसमें खुद जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 पॉइंट के साथ इन्होंने जो नोटिफिकेशन आर्टिकल 35A का भेजा था, उसे वापस किया जवाहरलाल नेहरू को कि ये संवैधानिक नहीं है। मतलब फॉरगेट अबाउट, उस समय प्रेसिडेंट खुद ही लिख रहा है इनको कि ये संवैधानिक नहीं है, और ये उसके जवाब में कह रहे हैं कि मैं आपके सभी बिंदुओं से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आप इसे जारी करें, मैं चाय पर आपसे अनौपचारिक चर्चा कर लूंगा। क्या देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जो है ना साजिश कर सकता है, वो भी असंवैधानिक? आप ये बताइए, ये देश जो है लगभग 1100 वर्षों से विभिन्न विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित होता रहा, थोड़ा बड़ा ज्यादा, राइट? और इसकी संस्कृति, इसके वैल्यू, इसके ज्ञान, वैदिक ज्ञान को जहां कहीं भी कुंठित किया जा सकता था वो कुंठित किया गया। इवन नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में महीनों तक जो है लाइब्रेरियां और वो ज्ञान जलता रहा। तो उस समय आप असहाय थे, आपकी हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, महिलाओं को दो दो मीनारों में बेचा गया, उसके स्तूप भी लगाए गए, तो हमें वो सब सहना पड़ा। जब आप स्वतंत्र हो गए, तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए थी कि खोए हुए सम्मान को वापस लेना, खोए हुए ज्ञान को वापस स्थापित करना, अपने कल्चर और अपने उसको स्थापित करना। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इन दुष्टतापूर्वक जब माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तुष्टीकरण का उल्टा जो है ना खेल अपनाया गया? जब जो है इस देश में अपने हिसाब से लोग बाग जो है को जहां जाना है वहां जाने का ऑप्शन दिया गया, और जो लोग वहां चले गए, राइट, आपने कहा कि नहीं उनकी संपत्ति और उनका सब कुछ यथावत रखा जाएगा कि मुस्लिम भाई वापस आएंगे। ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का। तो मेरा कहना है कि भाई साहब, आपने देश को क्यों बंटने दिया? आपने तो खुद ही कहा था कि ये देश मेरी लाश पे बटेगा। और जब ये बात हुई तो आपने जो ना, जब आपसे जो मिस्टर टंडन और बाकी लोगों ने, सीमांत गांधी वगैरह ने कहा कि साहब ये तो हमारे साथ दुष्टता है, आप हमको जो है ना इन गद्दारों के सामने फेंक रहे हो, ये क्या है, ये सब गलत है। तो गांधी जी ने बड़ा गोलमोल जवाब दिया, देखिए आपकी जो है ये वर्किंग कमेटी, इससे बेहतर लोग नहीं हो सकते हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया होगा वो सोच के ठीक ही किया होगा। इज इट नॉट ए अटर नॉनसेंस? वी वी वेयर विक्टिम ऑफ द ए ग्रेट कंस्पिरेसी, जो इन्होंने उल्टा महिमा मंडित किया है हम लोगों को, जिनको जो है रियली
कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, उन्हें महिमा मंडित कर दिया गया और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये इस देश के साथ बहुत बड़ी दुष्टता नहीं है क्या? देखिए अच्छा, चलिए वही चलिए, चीजें। जितेंद्र जी, मेरे ख्याल से इन बातों की यदि अपन चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चल जाएगी। मैं अब आपको इसके समाधान की तरफ ले जाता हूँ। हम्म, इसका समाधान बहुत छोटा इस बात में नहीं है क्या कि यदि हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर दें तो पूरी स्थिति बदल जाएगी और जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो शुद्ध देश के हित में 21 ऑब्जेक्टिव, आप आई डोंट नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, उनको पढ़िए आप, जिसमें हर चीज कवर है कि कैसे हम जो है इन नियम कानूनों को बदलेंगे, कैसे हम प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बना के अकाउंटेबल बनाएंगे, कैसे हम अपने जो है अपराध मुक्त भारत को बनाएंगे। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट नोट 2017 में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए सिटिंग डीजी भेजा था और 2019 में इसे मान्य किया गया। और इवन एज ऑन डेट आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस नेशनल पुलिस मिशन। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहां पर राजनेता खुद अपराधी हैं वो अपराध मुक्त भारत को क्यों पैदा होने देंगे? इस ये पे थोड़ा बताइए। सा मैं आपको बता दूं। एक सिंपल सी चीज है कि अभी हांगकांग के पीएम ने शायद पीछे एक स्टेटमेंट दिया था हम्म। कि 44% लगभग लगभग क्रिमिनल संसद में बैठे हुए हैं। अपने यहाँ और ऐसे 42% है। लोग बैठे हुए हैं जो हीनियस क्राइम्स के करेक्ट। अंदर भी हैं। 29% तो जो है ना इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर जो है हैविंग वेरी हीनस ऑफेंसेस लाइक मर्डर, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा। तो ये आप बताइए ना कि जब संसद में ऐसे लोगों का चुनाव करके भेजा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भाई जनता ने लोकतांत्रिक रूप से चुनाव किया गया, जनता जनता तो लोकतंत्र का यहाँ जनता पे तो सिर्फ नाम रह गया है। जनता तो जो है ना चुनने के लिए विवश है, क्योंकि नहीं आप जो है सर, अपराधियों को, बाहुबलियों को, देशद्रोहियों को, अपने आकाओं के बच्चों को, दल बदलुओं को ही टिकट बांट रहे हो, तो वेयर इज द ऑप्शन टू द पब्लिक? देखिए मैं आपने जो अभी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो नियम कानून पैदा किया उसमें इतनी दुष्टतापूर्वक पार्टी सिस्टम को आपने डाल दिया जो कि दैट हैज बिकम द रूट कॉज ऑफ एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आज आप बताइए अभी कि कोई अच्छा व्यक्ति जीत के आ सकता है क्या? और यदि एक आध व्यक्ति निर्दलीय के बतौर आ भी जाएगा तो वो देश का कुछ भला नहीं कर सकता है। नेचुरल है। तो अभी आपको देखिए नहीं लगता पॉलिटिकल है कि पार्टी हम जितनी भी हम हैं। आपको नहीं लगता है कि ये चीज हम बहुत आसानी से, जो हमने क्राइम फ्री भारत के तहत मॉडल निकाला है, जिसमें कि हमें जोड़ना है, लोगों के बीच में संगोष्ठियां करना है और जोड़ते जाना है, और उसमें डेली ट्रांसपेरेंट तरीके से एवरीवन विल नो कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट? उसमें यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना रहा है, यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो टाउन अधिकारी बना रहा है, यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो ब्लॉक अधिकारी बना रहा है, यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो जिलाधिकारी बना रहा है, यदि आप 50 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो राज्य अधिकारी बना रहा है, और 100 व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना रहा है। और जब आप 100 लोगों को जोड़ देंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी। और चंद्रगुप्त उसे कहा गया है, ये चंद्रगुप्त की यात्रा में जितने भी लोग रहेंगे, जिस दिन 2024 का चुनाव घोषित होगा उस दिन एक लाइन, कट ऑफ लाइन डाली जाएगी और ऊपर के 543 लोग ऐसे जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा है उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, राइट? और क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लिहाजा एक पॉलिटिकल पार्टी से टाइप किया गया है क्योंकि हमें वर्तमान प्रक्रिया के तहत इन राजनेताओं को हराना होगा, राइट? तो हमें जो है उसके लिए सांसद का टिकट चाहिए। सांसद का टिकट जो है पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, तो पॉलिटिकल पार्टी से टाइप किया गया है। वो जो है एक गुमनाम सी पार्टी है जिसका नाम भी गोपनीय रखा गया है, जो 2024 के चुनाव का नोटिफिकेशन होते ही
इन 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन में जोड़ा होगा पारदर्शी तरीके से, जिसे बीच में हर दिन जो है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये भी मालूम है, तो हर कोई बड़े ओपन और ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से जो इस रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वेरी पॉजिटिवली, और ऐसे लोगों को टिकट भी अपने आप पहुंच जाएगा। और इस पूरी व्यवस्था में जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो मैं फोर्सी कर रहा हूं कि आसानी से 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, और वो भी 9 दिन में संभव है यदि हम लोग अपने संकल्प से काम करें, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के अपने इन चंद्रगुप्तों के फेवर में कि मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो ये बड़े बड़े मठाधीश राजनेता जो 4-4, 5-5 बाहर से जो है विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, को नहीं लगता है कि वो बड़ी आसानी से न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी? देखिए, इसमें मैं अगर अपना कंक्लूजन आपको थोड़ा सा दूं, जी तो जरूर जरूर। हाँ। मेरा मानना ये है कुल मिला के कि आपकी विचारधारा में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है, जो ऑब्जेक्शनेबल है। एवरीथिंग क्लियर है, क्लियर आउट है। लेकिन मेरा एक पॉइंट इसमें ये है, मैं जहाँ तक अभी इन चीजों को स्टडी कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनली और नेशनली, अभी जो गेम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, वो गेम जिस लीड में जा रहा है, उस लीड में हमें जहाँ तक लग रहा है वो ये सीधा सा एक आइडिया लग रहा है कि 2024 के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। ये पूरा कंट्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चला जाएगा, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो रिजीम अपॉइंट होगा बाहर से, वही कंट्री को रूल करेगा। और टोटल मैं तो ये कह रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन ये तो हाइपोथेसिस आपकी है। जब हम इस नए मॉडल के तहत ऐसे सभी इंटरनेशनल पावर को बाहर ही कर देंगे, तो फिर उनके हाथ में कुंजी नहीं रहेगी ना, उनके हाथ में की नहीं रहेगी, की तो हमारे हाथ में आ गई है ना। उसको तोड़ने के लिए अब जो कार्य करना है, उस कार्य के अनुसार अगर आप नहीं, जो मैं कार्य कह रहा हूँ वही कार्य करें तो क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त है, एक मिनट, जो चंद्रगुप्त हैं उनके लिए ड्राफ्ट लॉज वगैरह टेक्नोलॉजी के ऊपर काम मैथिली शरण गुप्त ने काफी कुछ कर लिया है। जो थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है वो 2-4-5 महीने में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आदि के द्वारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर हैविंग इनफ इंटेलेक्चुअल्स, हमें जो है टैलेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, दिशा निर्देश की जरूरत है। तो यदि हम उनको एक डायरेक्शन देने की स्थिति में होंगे, तो जो गैप्स रह गए हैं उन गैप्स को फिल करने में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगेंगे, बहुत ज्यादा लगेगा तो 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने में हमारे पास ताकत होगी। अच्छा, उस समय भी हमारे पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगी, ये बात आपको समझना पड़ेगी, राइट? तो लेकिन हमें ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति होगी, तो हमें पूरा इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से बदलना होगा, और ये ऑर्डिनेंस 6 महीने में लैप्स होगा, तो हम उसे लिमिटेशन ना मान के अपॉर्चुनिटी माने टू रिफाइन अवर लॉज, अवर ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ एक्सपीरियंस। तो 4 साल बाद आपको राज्यसभा में मेजॉरिटी मिलेगी, तो आपके पास 8 रिफाइनमेंट के जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और जब आप 5वें वर्ष में उनको विधिवत जो है पार्लियामेंट से पास करके लॉ बनाएंगे, उस समय दे विल बी वेरी रिफाइंड लॉ supported by the technology, and technology finally will make it possible कि भारत का जो है कोई भी नागरिक जो है वो गरीब नहीं रहेगा। जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स जो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी हमारे ऊपर थोपे गए हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। हम जो है हमारे खाद्यान्न जो है वो, उससे फूड चेन जो विषाक्त हो रही है वो सब विषाक्त रूपी चीजें जो है ना गायब हो जाएंगी। हमारा जो आज सेल जो है केमिकल बम्बार्डिंग के कारण प्रोटेस्ट कर रहा है, जो कैंसर के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, कैंसर विलुप्त हो जाएगा। जैसे ही आपके सेल के ऊपर एट्रोसिटी करना बंद हो जाएंगी तो कैंसर भी गायब हो जाएगा। तो हम एक
बहुत ही कहना चाहिए कि और हमारे उसमें जड़ी बूटियों से लेके बाकी चीजें खाद्यान्नों में के माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाई जाएंगी, और केवल देश में नहीं विदेशों के लिए भी वो पूरा एक इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है। तो हम जो है बड़ी आसानी से अपने देशवासियों को निरोगी व दीर्घायु बना पाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक गरीब नहीं होगा। ये जो स्केर्सिटी है, इट इज क्रिएटेड बाय अस। नेचर ने हर जगह अबंडेंस दी है, हर जगह प्रॉस्पेरिटी दी गई है। जैसे ही हम नेगेटिव फोर्सेस को हटा देंगे, भारत का हर नागरिक जो है वो अमीर हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। अमीर इज नॉट द राइट वर्ड, समृद्ध होगा। और भारत से टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, और भारत के पास डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, और टैक्स नहीं होगा। और क्योंकि उसके लिए क्राइम फ्री भारत ने रेवेन्यू मॉडल्स जनरेट किए हैं, जिनके माध्यम से वी विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 20 टाइम मोर रेवेन्यू। और ये पेपर करेंसी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि पेपर करेंसी ही हमारी सभी गड़बड़ियों की जड़ है, राइट। तो जैसे ही पेपर करेंसी खत्म होगी, आप बताओ कोई भ्रष्टाचार संभव होगा क्या? पेपर करेंसी तो अभी ये भी खत्म करना चाह रहे हैं, ये भी नहीं डिजिटल नहीं, लाना चाह लेकिन रहे देखिए ये तो दुष्टता पूर्वक करना चाह रहे हैं। मैथिलीकरण शरण उसी चीज को डिफरेंट तरीके से करेंगे। जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, तो एज ए सिटिंग डीजी मैंने माननीय प्रधानमंत्री को अपनी ऑफिशियल ईमेल से 18 पॉइंट की सलाह भेजी थी, जिसमें से दो महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे कि आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, तो जो अकाउंट नहीं खुल पाए हैं, अधिकारियों की फौज भेजिए और हर घर घर में जाके जो बचे हुए अकाउंट है उनको खोल दिया जाए, और हर व्यक्ति को डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, और अधिकांश जगह पे पीओएस मशीन लगा दी जाए। तो हम जो है ये करेंसी के जो प्रॉब्लम है, एक्सचेंज बिजनेस, इसको बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। हमने इसको अपने प्रभाव का यूज करते हुए पीएमओ में फॉलो अप भी किया। आई स्पोक टू द ज्वाइंट सेक्रेटरी, आई स्पोक टू द एडिशनल सेक्रेटरी ऑन दिस इशू, लेकिन माना तो किसी ने नहीं। उन्होंने मुझे जवाब भी दिया कि आपकी ग्रीवेंस को जो है हमने संबंधित विभाग को भेज दिया है। तो भैया माननीय नहीं, वो तो प्रधानमंत्री, नॉर्मल उनका जवाब हर नहीं भी लेकिन मेल में नहीं, यही आता है। ये तो दुष्टता पूर्वक जवाब है ना। हमारा ग्रीवेंस नहीं है, इट वाज नॉट माय ग्रीवेंस, इट वाज सजेशन। अब आप ये बताइए, जितनी लीगल करेंसी सर्कुलेशन में थी, उससे ज्यादा करेंसी जो है वो सिस्टम में आ गई है। इसका मतलब है काउंटरफीटेड करेंसी भी आ गई है। तो आपका सिस्टम क्या कर रहा था? आप ये बताइए, जहां लोग बाग लाइन लगा के 4,000 का एक्सचेंज कर रहे थे, वहां पे 4-4 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए जो है ना सीज किए गए हैं। तो वो कैसे पहुंचा? क्या किया आपने उन लोगों का? यदि ये एक्सचेंज बिजनेस नहीं होता, तो हम बड़ी आसानी से रूट कॉज में जा सकते थे कि और एग्जामिन कर सकते थे कि जो भी पैसा जमा हुआ है, whether the person is having the financial capability to deposit it। लेकिन सोच तो ये नहीं थी ना, सोच तो बड़ी सीमित थी कि हम अपोनेंट्स को जो है ना मात देते हुए, राजनीतिक लाभ लेते हुए यूपी में अपना चुनाव जीत जाएं, जो वो जीते भी। तो यदि क्या हम इतनी सीमित सोच के साथ इस देश के साथ गद्दारी करेंगे? और ये लोग क्यों नहीं करेंगे? इनकी सोच क्या है, शिक्षा क्या है, चरित्र क्या है, लक्ष्य क्या है? ये तो ऐसा ही करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि जो आज राजनेता बने बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनमें से कितने लोग जो है ना आपको लगता है कि वो हमें रिप्रेजेंट करने की सच में जो है ना पात्रता रखते हैं? और ये इतने दुष्ट हैं कि ये पहले खुद गड़बड़ी करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर अपने बच्चों को भी हमारे ऊपर थोपेंगे। ये ऐसा देश है कि जहाँ पे एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना थोप के जाता है। इस देश के जो है ना मुख्यमंत्री इतने हकार हैं कि वो 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं,
तो एक नौमी फेल व्यक्ति को जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में थोप देते हैं। क्या सोच है हमारी, क्या सोच है? क्यों हम बाहुबलियों, दल बदलुओं और अपराधियों को जो है ना प्रेशर दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें सत्ता में बने रहना है और ये मॉडल हमारा काम कर रहा है। हमारे जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी ने दुष्टापूर्वक जो है ना ऐसा जो है ना पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है कि उनके बच्चे के बच्चे, बाद के बच्चे भी जो है ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे उनके बच्चे प्रधानमंत्री? क्या है उनके उसमें, क्या काबिलियत है? वाई दे शुड बी अवर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये जो है ना बहुत सारे लोगों से पूछा जा सकता है। हमारे ऊपर ये सब चीजों को, और हम जो है ना साइड इश्यूज पे अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो 15-18 महीने का समय है। जितेंद्र जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और छोटी छोटी संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जोड़िए और कोशिश करिए कि खुद अपने आप को आप चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर पाएंगे तो आप जैसा जो है इंटेलेक्चुअल देश के साथ जो है ना बहुत बढ़ा कर पाएगा। और आप जैसे यदि चंद्रगुप्त जो है ना निकल के सामने आएंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। नहीं, उस चीज के लिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, और तो मैं आपको लिंक मैं भेजता हूं बिल्कुल। क्योंकि ये जो है ना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसमें जो है हर दिन जो है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ता है उसके कमेंडेशन सर्टिफिकेट होता है। आज के दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहा, आप हर किसी के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। आप जो है ना वीक के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, आप महीने के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, आप आज तक के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। और हमारा सिस्टम जो है जैसा हमने आपको बताया है वो आपको पद भी बांट रहा है और वो पद बांटने के पीछे केवल एक ही सोच है कि एक तो मोटिवेट करना सोच है और दूसरा आपको ये विश्वास दिलाना है कि आपको अपने कर्म पे फोकस रखना है। आपको किसी से मिन्नत करने की जरूरत नहीं, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मिलना है वो स्वतः मिल जाएगा, राइट। और यही चीज जब आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलेंगे तब होगी, और यही चीज जब आपको सांसद का टिकट मिलेगा तब होगा, और बाद में जो है ना राज्यों के विधायकों का टिकट मिलेगा तब होगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन बड़ी आसानी से 100 करोड़ होगा। तो मैं थोड़ा सा समय लूं क्या आपको समझाने कि हम कितनी आसानी से 100 करोड़ हो सकते हैं? बताएं। पहले तो इसमें 3 इसके बहुत मूलभूत जो है कहना चाहिए शक्ति स्रोत हैं। एक तो है ऊर्जाकृत करना, तो लोगों को नहीं जोड़ना है, लोगों को जोड़ने के पहले उसे ऊर्जाकृत करना है। तो हम और आप जो बात कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, ठीक है ना? क्योंकि ये इट विल हेल्प टू रीअलाइन आवर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। और जब हमारी एनर्जी रीअलाइन होती है तो हमें मैग्नेटिक पावर जनरेट होता है, दैट इज द थिंकिंग। तो ये जो बातचीत अपन कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, राइट। अब इसमें संकल्प है, तो चूंकि छोटी पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, तो मेन संकल्प तो ये है कि मैं 9 दिन तक 10-10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ूंगा, राइट। अब उसको फिर 5 भागों में बांट दिया फॉर द पब्लिक कन्वीनियंस को, जिसको जो सूट करे उसको वो अपना ले। तो पहला है कि मैं संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन 10 लोगों को अपने नेटवर्क के 9 दिन तक जोड़ूंगा, मात्र 9 दिन का संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि मैं 5 व्यक्तियों को प्रतिदिन जोड़ूंगा और ये संकल्प फिर 18 दिन चलेगा। तीसरा है कि मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर चौथा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 45 दिन चलेगा। और पांचवा संकल्प है मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, संकल्प 90 दिन चलेगा। कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, राइट। अब इसमें एक शपथ भी है। शपथ यह है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। इस शपथ के 3 हिस्से हैं। दूसरा है कि मैं शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके एक वीडियो को प्रतिदिन जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। फिर संकल्प का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, स्थापित कृत करूंगा और निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो वो 7 दिन की शपथ अलग अलग है। सोमवार को मैं अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा।
मंगलवार का है कि मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार का संकल्प है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार का संकल्प है कि मैं विभिन्न सर्कल जिनसे हम जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से, उनसे जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवा और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। शनिवार का संकल्प है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और रविवार का संकल्प है कि जितने सारे समाजसेवी संगठनों को मैं जानता हूं, उनके पास जाकर उन्हें भी ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके जोड़ूंगा। राइट। अब इन तीन चीजों को अपन मान लें कि ऊर्जाकृत हो गए, संकल्पित हो गए और शपथकृत हो गए, तो कितनी आसानी से हम 100 करोड़ होंगे। अब जैसे एज्यूम करिए कि हम माने कि ये कार्यक्रम हमने आज ही चालू किया, एंड आई एम स्पीकिंग टू मिस्टर जितेंद्र एंड ही इज द वन पर्सन, राइट। जितेंद्र के बाद मैंने 8 और लोगों से बात की और सबको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया। तो मिस्टर जितेंद्र, आप इस बात से सहमत हैं कि हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे? और ये 10 लोग ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे और शपथकृत भी होंगे। तो दूसरे दिन जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ होंगे। तो मिस्टर जितेंद्र, यू में आस्क मी कि नहीं साहब, ये जो है ना, ये जोड़ने जुड़ाने का कार्यक्रम ऐसा मैथमेटिक्स से नहीं चलता है। तो मैं आपको एक रिवर्स तरीके से इस बात को समझाता हूं कि कितना आसान है। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जा रहा है। लिहाजा आप मुझे ये बताइए कि हम जो है 90 करोड़ लोग का संकल्प मात्र जुड़ के पूरा हो रहा है। तो अपने आप को जोड़ना क्या कठिन काम है मिस्टर जितेंद्र? अपने आप को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत सरल है, राइट। और 90 करोड़, 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प सिर्फ खुद को जोड़ने से पूरा हो रहा है। जो 9वें दिन 9 करोड़ लोग जो 10-10 को जोड़ रहे हैं, ऐसे 90 करोड़ लोग जो है सिर्फ जुड़ जाने मात्र से हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। अब 8वें दिन और 9वें दिन को जोड़ के जरा देखते हैं। 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं। 99 करोड़ लोग 99 करोड़ को जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को, या एक बच्चे को, या रिश्तेदार को, या एक दोस्त को जोड़ लेता है। तो 100 करोड़ लोग जिनको जोड़ना है उनमें से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं, कोई कठिन नहीं है। अब जो है अपन फिर से अपने से शुरू करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने जिसने इस कार्यक्रम को चालू किया उसके पास पूरे 9 दिन हैं और उसने 9 दिन का संकल्प लिया है। तो मैथिली शरण गुप्त को अकेले 90 व्यक्तियों को जोड़ना है, ठीक है। अब जितेंद्र जी जो कि पहले दिन जुड़े हैं उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो जितेंद्र जी को 80-80 लोगों को जोड़ना है। जितेंद्र और 8 बचे और लोग, राइट। तीसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों को सिर्फ 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को सिर्फ 60-60 लोगों को जोड़ना है। 9,000 लोगों को सिर्फ 50-50 को जोड़ना है। 90,000 को सिर्फ 40-40 को जोड़ना है। 9 लाख को सिर्फ 30-30 को जोड़ना है। 90 लाख को सिर्फ 20-20 को जोड़ना है और 9 करोड़ को सिर्फ 10 को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। इसके बावजूद भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो यदि हम व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 एनर्जाइज कर रहे हैं, संकल्पित कर रहे हैं, शपथकृत कर रहे हैं और इतने सारे मोटिवेशन दे रहे हैं, साथ में उनको चंद्रगुप्त बनने का अवसर दे रहे हैं, उन चंद्रगुप्तों को खुद जो है ना पार्टी चल के टिकट दे देगी और उन्हें बिना चुनाव प्रचार की, जो क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्य हैं, वो थाली जलाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्तों के विजयी बनाने का, जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन तक वोटिंग होगी उस दिन हर दिन संकल्प लेंगे
तो आपको नहीं लगता है कि जितने भी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता बड़ी आसानी से हार सकते हैं? देखिए, तो मैं अगर इसको थोड़ा सा बात करूँ, हम्म, आपने प्लान बनाया है, आप इस पे वर्कआउट भी कर रहे हैं काफी टाइम से, हम्म, आपको इस बारे में काफी अनुभव भी मिले होंगे हम्म, और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। हम्म। ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले हमें पब्लिक को एजुकेट करने वाला जो इशू है, जिसको आप एजुकेट कर रहे हैं, हम उसको ऊर्जाकृत करना कह रहे हैं, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो न्यूट्रल फिनोमेना है, ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो हम उनको अकेला अवेयर नहीं करेंगे, हम उन्हें ऊर्जाकृत करेंगे, उनके अंदर संकल्प पैदा करेंगे, उन्हें शपथ से जोड़ेंगे, तो हमारा काम और भी अच्छी क्वालिटी का होगा। और ये 1 to 1 कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लोगों को जोड़ रहे हैं, आप अपने जो है मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ रहे हैं, आप अपने जो है रिश्तेदारों को जोड़ रहे हैं, आप अपने सर्कल के लोगों से जोड़ रहे हैं जो कि आपसे इतने सारे वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप जो है केवल जो है विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिक और समाज सेवी संगठन उनसे पहले से जुड़े भी हो सकते हैं, या उनको आप अप्रोच कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक संगठित टाइप का जो है पूरी स्कीम है, और बदले में आपको स्वयं चंद्रगुप्त बनने का मौका मिल रहा है। आपको स्वयं जो है ना बिना 5 पैसे खर्च किए हुए टिकट भी मिल रहा है, और बिना 5 पैसे खर्च किए आप जीत रहे हैं। फिर जो इतनी भी दुष्ट आत्माएं जो अपन चर्चा कर रहे थे, वो सब काम हम लोग अपने हिसाब से कर पाएंगे। हमारे ऊपर ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, वो ऑर्डर, ये ऑर्डर, कोई ऑर्डर काम नहीं करेगा। हम किसी ऑर्डर से गवर्न नहीं होंगे। जितेंद्र जी, आप इस बात से कहां तक सहमत दिख रहे हैं? नहीं ठीक है। तो मैं क्या ये अपेक्षा करूं कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत बड़ा कर रहे हैं, उसके साथ में 1 आध घंटे इस काम को भी यदि आप करेंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी, मुझे समर्थन मिलेगा, और हम जो है बड़ी आसानी से लोगों को जोड़ पाएंगे। तो मैं हर किसी को अप्रोच कर रहा हूं। आई एम अप्रोचिंग एवरीबडी whomsoever आई फील कि उसको चंद्रगुप्त रखने की ताकत, बनने की ताकत रखता है, जो अपने लोगों को प्रभावित करने की ताकत रखता है, जो अपने लोगों को ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत करने की ताकत रखता है, जो कि खुद जो है अपने से जुड़े लोगों से को जो है जोड़ने के लिए उनके बीच में जाएगा, उनके साथ चाय पिएगा, उनके साथ संगोष्ठी करेगा, और क्राइम फ्री भारत में उनके मदद के लिए 2200 से अधिक वीडियोज हैं, जो कि डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर हैं कि कैसे जो है ना क्राइम फ्री भारत का तो ये मानना है कि वो पार्टी विहीन प्रजातंत्र को ले आएगा। क्राइम फ्री भारत ने जो है एक ऐप सिस्टम डेवलप किया है, जिसके माध्यम से खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। आगे चल के चुनाव में खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि टैक्स फ्री भारत होगा, और हमारे पास भारत के विकास के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, 20 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 20 टाइम्स आज की तुलना में ज्यादा रेवेन्यू होगा, और वो रेवेन्यू क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगा। तो आप बताइए, भारत से जो है ये पेपर करेंसी जैसे ही गायब होगी, तो ना भ्रष्टाचार संभव है, ना टुकड़े टुकड़े गैंग संभव है, ना आपके जो है ड्रग माफिया हो सकते हैं, ना आपके जो है हथियार माफिया हो सकते हैं। ये सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। डिजिटल करेंसी जाके फिर स्विस बैंक में भी जमा नहीं हो सकती है, पकड़ में आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। तो आप एक छोटी सी चीज से सभी समाधान कर पाएंगे। देखिए, न्यूक्लियर पावर वही है, एक व्यक्ति उससे बम बनाता है, दूसरा व्यक्ति उससे को जैसे पावर पैदा करता है। तो कुछ ये सोच और प्लानिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उस पावर को कैसे यूज करेंगे। और इससे हटके
हम चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे और ये दुष्ट लोग मोटी खाल करके हमारे ऊपर जो उनको थोपना है वो थोपते रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। वो जहां पहुंच गए हैं उनको वहां होना ही नहीं चाहिए थे, तो वहां तो वो कुंडली लगा के बैठना चाहते हैं। तो उन्हें आप महत्वपूर्ण है नहीं, वो तो एक के बाद एक साजिश करेंगे। और उनके प्लान तो इसके आगे के भी हैं कि आपके ऊपर उन्हें अपने बच्चों को भी थोपना है। जितिन जी, आप मेरी बात को वाइडर पर्सपेक्टिव में, आई एम वेरी श्योर सिंस यू आर हैविंग सो मच ऑफ द एक्सपोजर एंड यू हैव डन सो मच ऑफ द पीएचडीज, मैं देखा था शायद 5-6 पीएचडी आपने की हुई हैं, तो आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर सीवी। मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपका वेलकम है इसी पे। ठीक है, तो मैं जो है आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप की लिंक भेज रहा हूँ, और फिर मैं आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को लिंक भी भेज रहा हूँ। तो आप जो है इसको और डिटेल में स्टडी करके, आई विल बी वेरी हैप्पी कि हम डिफरेंट मॉडल पे भी आपसे चर्चा करें। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को आप जैसे लोगों से चर्चा करके हमें रिफाइन करने का मौका मिलेगा। चाहे वो पेपर लेस करेंसी का सिस्टम हो, या टैक्स फ्री भारत का से हो, रेवेन्यू के मॉडल के बारे में हो, चाहे एग्रीकल्चर एग्रो मॉडल है जो कह रहा है कि हम किसान की आमदनी 5 गुना और मजदूर की आमदनी 10 गुना बढ़ा देंगे, और 5 साल बाद भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी को लोन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर चीज डिजिटल होगी। तो हमें मालूम होगा कि आप नहीं कमा पाए हैं, तो हम आपके पास पहुंचेंगे कि भाई साहब जितिन जी, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, एंड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द सिस्टम टू हेल्प यू टू अर्न मोर। तो आपको समृद्ध बनाने की जिम्मेवारी सिस्टम की होगी, ना आपको फ्रीबी की जरूरत होगी। इसमें सिस्टम में है कि हमारा जो मजदूर है वो 50,000 रुपीज पर मंथ कमाएगा, पर तो यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति को अच्छे घर में रहने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छी शिक्षा पाने का आराम से वो अफोर्ड कर सकता है, राइट। और जब हर चीज का मॉडल जो है उसको फैसिलिटेटिंग वाला है, आज तो हर चीज में आपको कुंठित करने का मॉडल है ना, आपके ऊपर जो आके छापा मार दिया, तो यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वी शुड हेल्प आउट टू जो है ना सॉर्ट इट आउट। हमने आपके अकाउंट सीज कर दिया, आपका ये कर दिया, आपका वो कर दिया, तो हमने तो आपको जो है ना खड़े रहने का ऑप्शन खत्म कर दिया। हमारा सिस्टम कहता है कि आप चेक जारी करेंगे, तो यदि वो चेक डिसऑनर नहीं होगा, यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो वो पैसे, वो जो है ना क्राइम फ्री भारत का जो है रिवार्ड मनी जो है ना विल रीच एंड विल इनकैश योर चेक। फिर वो आपसे बात करेगी क्या प्रॉब्लम है। तो जो आज पूरे बिजनेस मॉडल में जो है ना अविश्वसनीयता हो गई है, हर आदमी परेशान है, झूठ बोल रहा है, उसकी चेक डिसऑनर हो रही है, वो झूठे वादे करके जो है ना कुछ काम कर रहा है, ग्राउंड पे हो ही नहीं रहा है, हर कोई दूसरे को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है, वो सब चीजें विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कैंसर विलुप्त होगा, क्योंकि आपका कैंसर का कारण और कोई कारण नहीं है। कैंसर का एक ही कारण है कि आपके शरीर के सेल आपके जो अत्याचार के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर ओवर ग्रोइंग। जैसे ही आप उनके प्रति अत्याचार बंद कर देंगे, आपके सेल, चूंकि वो इतने पावरफुली डिजाइन किए गए हैं, दे आर हैविंग द पावर टू रिक्रिएट। आपकी बॉडी के सेल जो है 45 डेज में बदल जाते हैं। तो पूरी चीज जो है ना एकदम बदल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कुछ लोग जो है चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो नेचर ने कहीं स्केर्सिटी पैदा नहीं की है। नेचर इज हैविंग द अवेयरनेस। हम इस अवेयरनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें सोच चाहिए, शक्ति चाहिए। आप ये बताइए, ये सभी केमिकल्स गायब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, यदि आप यदि कंट्रोलिंग सीट पर बैठे हुए हैं तो? यस, 2 मिनट में हो जाएगा। आप जो है जब आपके ही गवर्नर ने, आई एम श्योर, हैव यू हर्ड अबाउट आचार्य देवव्रत, गवर्नर ऑफ गुजरात? आपको उनका नाम सुना है आपने? उनके उनके
जो उन्होंने रिसर्च वर्क वगैरह किया है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है क्या? थोड़ा कुछ आइडिया तो है हल्का। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से लेके गोबर पे ऊपर बहुत काम किया, जीवामृत पे काम किया, घन अमृत के ऊपर काम किया, अमृत मिट्टी पे काम किया, कैंचियों के ऊपर काम किया, बहुत सारे जीवाणुओं पे काम किया। और उसमें उन्होंने ये रिसर्च में पाया कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। और जो आवारा देसी गायें हैं जो दूध नहीं दे रही हैं, उनके गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। जीवामृत घनामृत बना के हम मात्र 1 साल में जो ऊसर जमीन है जिसका कार्बन कंटेंट घट के ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट घट के 0.3 पहुंच गया है और जमीन ऊसर हो गई है, वो जमीन 1 साल के अंदर 0.8 और 0.9 ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक कार्बन में पहुंचाई जा सकती है। तो हमें पूरी शक्ति वहां नहीं लगा देना चाहिए। आप ये बताइए, हम जब 16 करोड़ लीटर दूध जो है ना पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ दूध जो है ना हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी तब जबकि बहुत सारे लोग दूध को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें तो 100 करोड़ लीटर दूध चाहिए। 100 तो 100 करोड़ लीटर दूध के हिसाब से हम अपनी गायों को जो है ना 10 टाइम्स करने का हमारा एक्शन प्लान क्यों नहीं हो सकता है? अंग्रेजों का जमाने का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है ना हम रिवाइज करके, व्हाई वी शुड नॉट ब्रिंग द कम्युनिटी ऑनरशिप, जिसमें पेड़ काटने की इजाजत नहीं होगी, ढेर सारे पेड़ लगाए जाएंगे, एक्वाकल्चर लगाया जाएगा, गौशालाएं वहाँ होंगी, वहाँ पे ढेर सारे जो है ना पेड़ होंगे जिसके फॉडर से जो है ना हम उसे फीड करेंगे, तो गाय के ऊपर खर्च ही नहीं आएगा। गाय की पूजा के लिए भी जो है ना व्यवस्था होगी, गाय की सेवा की व्यवस्था भी होगी, और ढेर सारे हॉर्टिकल्चर औषधि वाले प्लांट्स होंगे, और उसमें हनी जो बनाई जाएगी दैट विल बी हैविंग दैट मेडिसिनल जो है ना वैल्यू। तो कल हम डिफ्रेंशिएशन करके हनी फॉर बीपी, हनी फॉर दिस, हनी फॉर दैट, उस तरीके की चीजें भी हम मार्केट में ला सकते हैं, और हमारे देश में तो लोगों को जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन हम विदेशों में उसे बेच पाएंगे। दूध के में भी जो है यदि हम अपनी गायों को मेडिसिनल प्लांट को, प्रोटीन के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट को भी यदि हम देंगे, तो इट इज ए मैटर ऑफ रिसर्च, लेकिन मेरा गट फीलिंग कहती है कि हमारे दूध में जो है वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। तो क्या हम डिफ्रेंशिएशन करके अपने मिल्क फॉर बीपी, मिल्क फॉर दिस, मिल्क फॉर दैट कर सकेंगे? मेरे ख्याल से कर सकेंगे। हम जो है अपने खाने में वही औषधियों और जड़ी बूटियों को जो है ना अलग अलग प्रोपोर्शन में मिला के, डिपेंडिंग अपॉन जो है, हम लोगों को निरोगी और दीर्घायु बना पाएंगे। लेकिन किसी के दिमाग का ये चिंतन का विषय होना चाहिए ना। लोग तो दुष्टतापूर्वक जो है ना बदमाशियों और मक्कारी में लगे हुए हैं, स्वयं अपराधी हैं, सोच है नहीं, शिक्षा है नहीं, और वो बैठे हुए हैं मटारे, और उसके बाद उनको अपने बच्चों को भी अभी से जो है दे आर मॉडलिंग देम टू बिकम द फ्यूचर चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स। तो इस दुष्टता से हमें कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना ही होगा, किसी न किसी को तो सोचने की हिम्मत करना होगी। सो व्हाई नॉट वी अवरसेल्व्स टू थिंक ओवर इट। ईश्वर ने वो सोच दी है, शक्ति दी है, इतना सारा एक्सपीरियंस दिया है, मॉडल भी दे दिया है, और वो कॉस्मोस हेल्प कर रहा है टू गिव यू द फाइनर ग्रेनुलर्स ऑफ ऑल मॉडल्स। और फिर आप जो है इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, यदि उनको थोड़ा सा दिशा निर्देश देंगे। हमने तो 11 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट की है क्राइम फ्री भारत के लिए, एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो हमें कर्म के माध्यम से परिवर्तन लाने की बात करना पड़ेगी, और हमें समस्या को अवेयरनेस अकेले नहीं बनाना है, हमें ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर उन समाधान को जमीन पे उतारने का एक होलिस्टिक सॉल्यूशन लेके आना होगा। जहां हम जीतेंगे क्या वो भी मॉडल में है, बिना खर्च के जीतेंगे वो भी मॉडल में है, ड्राफ्ट जो ऑर्डिनेंस से लेके टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज जमीन पे लाना पड़ेगी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था करना ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा डीएनए खराब हो चुका है। हम आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज आदमी जो है ना कपटता पूर्वक झूठी रिपोर्ट करता है, फंसाता है।
आप एक डोमेस्टिक वायलेंस में देखो जो है ना, वो एक व्यक्ति ने गड़बड़ की, मालूम पड़ा कि पूरे कुनबे का नाम लिखा दिया। आप दहेज में देख लीजिए, ऐसा ही करते हैं। तो हम दुष्टापूर्वक जो है सत्य का साथ तो दे नहीं रहे हैं, तो हमारे तो जीन में खराबी आ गई है। तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके इन सब जो है जेनेटिक जो डिफॉर्मेशन आ गया है, इसको हम बड़ी आसानी से 21 दिन में बीज बो सकते हैं और 90 दिन में उसको रीइंफोर्स करके आपके आदत का स्वभाव, आदत का हिस्सा बना सकते हैं और संस्कार का हिस्सा बना सकते हैं। तो जब हम एक साल में अपने जमीन को ठीक कर सकते हैं और फूड चेन से विष को बाहर कर सकते हैं, केमिकल पॉइजन को बाहर कर सकते हैं, और यदि हम 90 दिन में अपने स्वभाव और संस्कार को बदल सकते हैं, तो दुखी होने की बजाय हमें काम करने का मॉडल जमीन पे लाना चाहिए। नहीं? ये आपकी किस हद तक जितेंद्र आप मुझसे अपने आप को सहमत पा रहे हैं? नहीं, मैं आपसे आपके पॉइंट से एग्री हूँ, बट इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। देखिए, एक तरफ से पॉजिटिव जो मोमेंट आप लाना चाह रहे हैं, जो चीजें आपने बताई हैं, ठीक हाँ है, हाँ मैं उनसे बिल्कुल एग्री हूँ कि वो हमें करना पड़ेगा, नहीं भी होगा तब भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है। ये कारण क्या है? क्योंकि अभी जो हवा चल रहा है और जो सिचुएशन चल रहा है, हम्म। उसमें अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं संभाला तो फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएगा सब। 2024 से के बाद आपको अगला मौका 2019-29 में मिलेगा। तब तक ये आपको इस स्थिति में ही नहीं छोड़ेंगे कि आप इंटरवीन करने की बात सोचेंगे। तब तक तो ये मैं आपका जो है उसी ना मॉडल, और आपके जो है ना जीन को मॉडिफाई करके ही दम लेंगे। मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ आपको कि हाँ अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है पूरी हाँ हाँ। दुनिया के अंदर, इस वैक्सीनेशन का एक टाइम पीरियड में इफेक्ट आना है, रिजल्ट आना है। हम्म। रिजल्ट यही है कि जो अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है उसके अंदर कितने चेंजेस बॉडीज में अभी तक लोगों के आ चुके होंगे और कितने आगे आएंगे, हम्म। और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चाहे बच्चों में हो चाहे वो बाकी में हो। वो इन्होंने अभी तक जो है एक प्रकार से यदि आप ड्राइविंग सीट बुजुर्ग, में बैठ जाएंगे तो उस डायमेंशन पे भी आप रिसर्च करके उसको यदि पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम उसको कंटेन करने की स्ट्रेटेजी तो आपके हाथ में आ जाएगी। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुल मिला के अभी जो सिचुएशन है, हम्म। मैं सिचुएशन में ये कह रहा हूँ आपको कि एक तरफ हमारे ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है हम्म। और एक तरफ हमें शांति का प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, हमें डेवलपमेंट का अपना कैप्चरिंग करना है। देखिए, तो डेवलपमेंट तो अपने आप हो जाएगा जब आपके पास 20%, 20 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू होगा, जब आपके उसमें सिस्टम में भ्रष्टाचार होने की संभावना खत्म हो जाएगी, जब अपराध होगा नहीं, जब सिस्टम आपके उसकी बिजनेस क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करेगा, तो लोग बाग सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि जितेंद्र ठीक आदमी है कि नहीं है, ये इनकी चेक है, ये ऑनर होगी कि नहीं होगी। तो जो हमारी नेगेटिव कुंठा, नेगेटिव सोच और जिसके कारण हमारी काफी एनर्जी खराब होती है, वो बच जाएगी। तो हम तो इको सिस्टम को ही बदल देंगे ना। और मैं आपको जो बात आप कह रहे हैं कि जो जेनेटिकल डैमेज करने के लिए जो सिस्टम किया गया है, उस पर रिसर्च करके उसके कंटेनमेंट या रिवर्सल के लिए जो कुछ संभव है वो भी आप कर पाएंगे। आज तो आप सिर्फ अपनी कहानी कहने की स्थिति में हैं, उसे कौन सुनने वाला है? आपने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा, तो उसको किसने केयर दिया, किसने उसको तवज्जो दी? किसी ने तवज्जो नहीं दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं आपके पॉइंट को समझ रहा हूँ, मैं और जो आपकी हम वही बात बात। कर रहे हैं, ये बात जो है कल तक इट विल बी अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत, so it will be not a dialogue between me and Jitendra, but it will be जो है ना available for the consumption of the globe at a large। तो इसको, इस अपनी वार्तालाप को छोटा मत मानिए, ये बहुत बड़ी चीज है, एक चिंगारी है, जो एक बीज है जो हम बो रहे हैं। मैं उसी चीज के लिए आपको बता रहा हूँ कि अभी सबसे पहले भारत को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने तो की जरूरत सब जितेंद्र है। जी, मैं ये तो जो उससे एक कदम आगे जा रहा हूं कि जागरूकता के को ऊर्जाकृत करने तक ले जाओ, और नए व्यक्तियों की बजाय जो आपसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ट्राई देम। और हमने आपको बताया कि कितनी आसानी से हम 100 करोड़ होंगे, कितनी आसानी से जो है ना चंद्रगुप्त को हम पहचान पाएंगे। ये भी ओपन कंपटीशन में आ रहा है, तो नो कोई भाई भतीजावाद नहीं है।
जो संगोष्ठियां करेगा, जो लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो जो भी चंद्रगुप्त बनना चाहता है वो इसमें आगे आए। हर जैसा किसी ही को, मैं आपको पूरी हर किसी को जो है ना बराबर के मौके हैं। मुझे लग रहा है कि अकेले अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, अकेले ऊर्जाकृत से काम नहीं चलेगा, अकेले संकल्प से काम नहीं चलेगा, अकेले शपथकृत से काम नहीं चलेगा। हम उस शपथ और उस एनर्जी को मैग्नेट जैसा यदि एनर्जाइज कर देंगे तो मैग्नेट काम करेगा। तो हम इस मॉडल के माध्यम से लोगों को जिता पाएंगे। इन समस्त दुष्ट राजनेताओं को, जो समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेता पराजित होंगे, हम पूरे 543 के 43 पार्लियामेंट में अपने चंद्रगुप्तों को पहुंचा पाएंगे। और वो ऐसे चंद्रगुप्त होंगे जिनके चेहरे भी आज स्पष्ट नहीं है। वो तो जो है ना 2024 में जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उस दिन ऊपर के 543 लोग आएंगे, तो तब तक तो सभी लोग चंद्रगुप्त की यात्रा में ही रहेंगे। वो देख पाएंगे कि चंद्रगुप्त की यात्रा में किसकी दौड़ कितनी तेज चल रही है, क्योंकि वो हर चीज जो है वो ऐप बताता है कि आप कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, और वो उसको बाकायदा मेरिट के ऑर्डर में बताता है। राइट। तो आप फील कर सकते हैं कि आप 543 के नीचे जा रहे हैं तो थोड़ी और मेहनत करिए और संगोष्ठियां करिए। और जो लोग इस सोच से जुड़ के इतनी मेहनत करेंगे वो खुद जो है तरासे हुए हीरे की तरह बन जाएंगे। जब वो लोगों को समझाएंगे तो वो सोच जो है, यदि आज उनकी चिंतन का हिस्सा नहीं है, तो 18 महीने में वो इनके चिंतन का हिस्सा बन जाएगा, सोच का हिस्सा बन जाएगा, वो उनके जो है आदर्श का हिस्सा बन जाएगा, वो उनके लक्ष्य का हिस्सा बन जाएगा। डू यू एग्री विद दैट? गुप्त फिर मैं आपके बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको। हाँ हाँ। आपके विजन में एंड मिशन में नो डाउट सारी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ देखो आपने एक चीज डाली और भी है, इतने वर्षों का अनुभव है, मैं कोई नेता नहीं हूं। राइट। है। और हमने टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया है। एज ए आईजी ऑपरेशंस कश्मीर हमने स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप करके आई हैव शोन वंडरफुल रिजल्ट इन कश्मीर। आई हैड बीन जो है ना एसपी इन नक्सल एरिया, आई हैव बीन द डीआईजी इन नक्सल एरिया, एंड आई कुड जो है ना हैंडल देम एंड आई कुड डू दैट आल्सो। I was SP of the Bhopal, so I have handled different kind of the situation in the whole country। और हमने नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को और सभी को बहुत नजदीक से देखा है और परखा है, इसलिए जो सॉल्यूशन बनाए गए हैं उसमें बहुत बड़ी डिग्री का कन्विक्शन भी है। वो कोई हवाई ख्याली पुलाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर ऑन ड्राइविंग सीट, तो जहां पर अच्छी सलाहें आएंगी उनको इनकॉर्पोरेट करते जाइए। जब नेचर इवॉल्व हो रहा है, नथिंग इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग एवरी सेकेंड, देन आप एक स्टैटिक मॉडल के साथ क्यों चलना चाहते हैं? जो भी नई नई चीजों को सामने आएंगी उनको इनकॉर्पोरेट करते जाइए, उसके सॉल्यूशन डिजाइन करते जाइए। चूंकि ये कोई विदेशी का तो हाथ दिमाग का खेल है नहीं, तो जो है ना आपको किसी से परमिशन तो लेना होगी, नहीं लेना होगी। आप किसी दूसरे ने तो आपकी जो है ना बुद्धि का पेटेंट कराया नहीं है, तो आपकी बुद्धि आपके पास है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है ना? मैं मैं एंड लास्टली जो आपको कहना चाहता हूँ वो यही है कि आपके मॉडल पे वर्कआउट किया जा सकता है और अच्छा एक वर्कआउट है ये, और इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी एक जो है पोजीशन बनी हुई है, उस पोजीशन में भी लोगों को अभी बचाना है और लोगों को इस चीज़ के लिए आगाह करना है कि ये जो हो रहा है ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है। अब जब इंसानियत हम के खिलाफ संगोष्ठियां करेंगे तो इस डायमेंशन में भी लोगों को बताते जाएं, ठीक है ना? लेकिन आप बिल्कुल एकदम हेल्पलेस हैं। आप बताइए, आदमी को अपने जीने के लिए यदि जो है ना इनकी वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगी तो लगवाएगा, बेचारा क्या करेगा? उसे सिस्टम में जीना है। अब जब सिस्टम दुष्टता आपके साथ करेगा और आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आपकी हैसियत एक बड़े गुलाम जैसी है, तो आप अवेयरनेस करिए। और हम तो कह रहे हैं अवेयरनेस की बजाय आप ऊर्जाकृत करिए। वो इट विल जनरेट दैट स्पिरिट कि हमें उस संकल्प के साथ हम जो है ना एक भी
543 में जो है ना 542 भी नहीं होगा, पूरे 543 जो है ना हम इन सभी पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। वही कह रहा हूँ कि राजनीति को पराजित करना और उस ये चीज के अपने लिए आप हो जाएगी। आप थोड़ी राजनीति को पराजित कर रहे हो, आप तो जो है ना अपने मिशन के सदस्यों को बना रहे हो, जो खड़े होकर जो है ना आपके नाम पे संकल्प लेंगे। अभी उनके पास कोई अच्छा मॉडल नहीं है। जब वो उससे कन्विंस होंगे, जुड़े होंगे, ऊर्जाकृत होंगे, शपथकृत होंगे और खुद जो है ना संकल्प लेंगे अपने राजनेता, अपने जो है ना चंद्रगुप्त को जिताने का, तो राजनेता तो अपने आप हार जाएंगे ना। आप थोड़ी उनके लिए कोई चुनाव सभा कर रहे हैं। आप ना सभाएं कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं, ना आप प्रचार कर रहे हैं। और आप ये देखिए, ये राजनेता तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, जिनके लिए लाठियां खाई हैं, इनके लिए जुलूस निकाला, धरना दिया, इनके लिए आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की, ये तो उन्हीं के सगे नहीं है, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उनको टिकट ना देके ये टिकट जो है ना बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के बेटों को और जाति और धर्म के आधार पर उसमें भी इसी तरीके के लोगों को प्रमोट करके कर रहे हैं। अच्छे लोगों को टिकट देने में इनकी जान निकलती है। ये अपने से योग्य लोगों को जो है टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। तो जितेंद्र जी, आप मेरे अनुभव से कुछ कुछ काम करिए, कुछ कुछ मैं आपके अनुभव से काम करता हूं, और हम इस मुहिम में साथ होते हैं। और मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप जुड़िए और हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। और बहुत सारे मॉडल्स पे मैं आपको सुनना चाहूंगा, और आपकी विचारधारा से यदि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या रिफाइनमेंट संभव होगा तो हमारी सोच उसको रिफाइन करने की रहेगी। और हम तो कह रहे हैं कि आप जैसे और लोगों को आइडेंटिफाई करके हम जो है ना उनके साथ संगोष्ठी कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, जिससे जो मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड है उसे हम और रिफाइन कर सकें। देखिए, इस चीज के लिए जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं अभी जो हम काम कर रहे हैं, हम्म। और उसमें हम इस चीज को सबके साथ शेयर भी करना चाहेंगे। और इस चीज में मैं आपको डायरेक्ट नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनसे जो चीज शेयर करना है वो उनको क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए और उनको जो है ना अपने अपने उसमें काम करने दिया जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज जो है अपन गोपनीय रखना चाहते हैं उसको अपन पब्लिक परव्यू में नहीं डालेंगे। ठीक है ना, राइट। नंबर 3 जो है, हम जो है जो चीज ओपन कहना चाहेंगे वो ओपन कहेंगे, जिससे कि पब्लिक में और विश्वास पैदा हो। जब 4 जो है विद्वान लोग, समझ वाले लोग जिन्होंने इतनी सारी रिसर्च की है, 5-5 6-6 पीएचडी की हुई हैं, जब वो किसी मॉडल से सहमति दिखाएंगे या उसमें सुझाव देंगे और उसके आधार पर रिफाइनमेंट होगा, तो उस मॉडल की विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से वार्तालाप को समाप्त किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।